Hello and welcome to the new session of Indian economy 1950 to 1990. Let's start with the topic that we have discussed in our previous session. In our previous session, we have seen about the introduction, wherein we have seen that India decided to go for the mixed economy because when India got independence on 15th August 1947, the first question before us was to decide which sort of economy actually we need to have for our country. So the scholars and thinkers during those time decided to go for the mixed economy, wherein we can have the features of both the capitalist and the socialist economy that we have seen in the introduction portion. The next we have seen about the central problems of an economy. We have seen that every economy faces with the three central problems that are what to produce and in what quantity, how to produce actually, and for whom to produce. These are the three central problems that we have seen in our yesterday's session. We have also seen that how to solve the problems in the three economy, that is capitalist, socialist and the mixed economy. So this we have seen in our previous session. Today we are going to start with the difference between capitalist, socialist and the mixed economy. If you are clear with the term capitalist economy, socialist economy and the mixed economy, the differences will be very easy. Before starting the topic, let me tell you, capitalist economy is that economy wherein the things are in the hands of the private sector. Socialist economy, here the things are in the hands of the government. And in mixed economy, both private and government operates together. Now let's see the difference in detail. The first point, nature. See, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं. वाई फ्री इकोनॉमी? बिकॉज हियर मार्केट फोर्सेस आर ऑपरेटिंग. कौन से मार्केट फोर्सेस? देयर आर टू मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई. जहाँ डिमांड एंड सप्लाई ऑपरेट करते हैं उस टाइप ऑफ इकोनॉमी को फ्री इकोनॉमी कहते हैं, बिकॉज ओनली दोज गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड जिसकी डिमांड है. सो द पॉइंट हियर इज इट इज़ द फ्री इकोनॉमी where market forces of demand and supply organize economic activities. मतलब कौन सी economic activities होंगी यहाँ पे? जो market force demand and supply पे depend है वही activities यहाँ पे होंगी. Whereas in socialism it is a planned economy. Why planned economy? Because यहाँ जो भी economic activity होगी वो regulate government ही करेगा. Because the things are in the hands of the government. So government regulates all the economic activities in socialism and in mixed economy दोनों ऑपरेट करेंगे. लेकिन see how important decisions are taken by the government and the economic activities are conducted by the market. So आप देख सकते हो मिक्स इकोनॉमी में दोनों का रोल आ गया. गवर्नमेंट इज ऑल्सो ऑपरेटिंग एंड द प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो फंक्शनिंग. So I hope the first point is clear. Once again, the first point, it is the free economy जहाँ मार्केट फोर्स डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करेंगे कौन सी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी. सोशलिज्म में ये प्लान्ड इकोनॉमी है जहाँ गवर्नमेंट डिसाइड करती है कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी. एंड इन मिक्स इकोनॉमी इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड द एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो अंडरटेकन बाय द मार्केट फोर्स. द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट मोटिव ऑफ प्रोडक्शन. सी क्लियर है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अगर प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट होता है तो उनका मोटिव प्रॉफिट ही रहता है. सो प्रॉफिट मोटिव इज़ द ऑब्जेक्टिव. सोशलिज्म में सोशल वेलफेयर इज़ द ऑब्जेक्टिव बिकॉज द थिंग्स आर इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट का मोटिव प्रॉफिट का ना होके उनका मोटिव सोशल वेलफेयर का रहता है. वेयर इज इन द मिक्स इकोनॉमी प्रॉफिट मोटिव रहता है प्राइवेट सेक्टर का एंड सोशल वेलफेयर रहता है पब्लिक सेक्टर का. सो दैट इज सेकेंड पॉइंट, वेरी इजी. प्रॉफिट मोटिव इन कैपिटलिस्ट, सोशल वेलफेयर इन सोशलिज्म एंड मिक्स इकोनॉमी में प्रॉफिट मोटिव रहेगा प्राइवेट सेक्टर का एंड सोशल वेलफेयर रहेगा पब्लिक सेक्टर का. द थर्ड पॉइंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट. अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में
प्राइवेट सेक्टर ही ऑपरेट करता है तो कोई गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं है. So you can say role of government is not there, or no direct control of the government is in here. Whereas in socialist economy, government plays an active role because everything is in the hands of the government. Whereas in mixed economy, full control by the government लेकिन सिर्फ public sector में, and partial control in private sector. See, mixed economy में जो private sector operate होता है वहाँ भी government का control होता है लेकिन partial control होता है. वेरेज वहाँ जो भी पब्लिक सेक्टर है उसमें गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है. सो 3 पॉइंट्स वी हैव सीन हियर. सॉल्यूशंस टू द सेंट्रल प्रॉब्लम, ये हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था डिटेल में, दैट अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगे, सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगे, एंड मिक्स इकोनॉमी है तो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगे. लेट्स सी. In capitalist economy, the central problems are solved through the price mechanism. अब price mechanism मतलब market force demand and supply जहाँ है वहाँ price mechanism operate करता है. इसी सिंपल है. अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ जाएगी, एंड अगर सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस कम हो जाएगी. सो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे? प्राइस मैकेनिज़्म से. एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी है या सोशलिज्म है तो वहाँ प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगे? थ्रू प्लानिंग कमीशन. वेयर एज मिक्स इकोनॉमी में both the price mechanism and planning mechanism will be under function. Now the next point is about competition. Private sector है capitalism में, so private sector will compete amongst each other, so competition है. In socialism competition नहीं है because everything is in the hands of the government, so there is no competition. Whereas in mixed economy there is competition, but the competition is only in the private sector. Next topic is the merits. एडवांटेजेस क्या हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के? जहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है मतलब जहाँ प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट करता है, कंपटीशन है, डिमांड एंड सप्लाई से चीज़ें डिसाइड होती हैं, वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ जल्दी होता है. इट इंक्रीजेस इकोनॉमिक ग्रोथ. सोशलिज्म में एडवांटेज क्या है? सोशल जस्टिस. एंड मिक्स इकोनॉमी में इट एंश्योर्स कंज्यूमर सोवेनिटी, मतलब कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, सो कंज्यूमर इज इन द सेंटर. अब डीमेरिट क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विल नेवर थिंक अबाउट द वेलफेयर. इट ओवरलुक्स सोशल इंटरेस्ट. सोशल इंटरेस्ट के बारे में ये लोग सोचते ही नहीं हैं. सोशलिज्म में क्या हो जाएगा? इट इग्नोर्स कंज्यूमर सोवेनिटी, मतलब कई बार कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है वो यहाँ पे इग्नोर किया जाता है. नाउ इन द लास्ट टॉपिक मिक्स इकोनॉमी में, जहाँ मिक्स इकोनॉमी है यहाँ वहाँ ये हो सकता है कि इनएफिशिएंसी एंड करप्शन मार्केट में प्रिवेल हो सकते हैं. दैट इज़ द डीमेरिट इन द मिक्स इकोनॉमी, दैट इनएफिशिएंसी एंड करप्शन माइट कम टू द मार्केट. नाउ our next topic is about plan and economic planning. See, these are the two terminologies also which you need to be very clear with. Can be asked as a short 1 mark topic also, and can also be asked as a 3 mark question. What is plan and what is economic planning? You need to understand it very properly. These two words are very different words. So let's start with, first of all, what is plan. See, a plan specifies how the resource of the nation should be put to use. क्या है सेंटेंस? प्लान क्या स्पेसिफाई करता है? प्लान क्या बताता है? रिसोर्स ऑफ द नेशन को कैसे यूज़ करना है. बिकॉज रिसोर्सेस नेशन के हमेशा कैसे रहते हैं? द रिसोर्सेस आर लिमिटेड, एंड उन रिसोर्सेस का ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होता है. ऑल्टरनेटिव यूजेस मतलब रिसोर्स कम है एंड इन रिसोर्सेस का बहुत अलग अलग जगह पे यूज़ हो सकता है. से फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज हैविंग 1000 rupees, now with that 1000 rupees he can buy clothes, he can buy books, he can buy a small toy, he can buy a t-shirt or many things. so resource उसके पास लिमिटेड है 1000 rupees. अब उस 1000 rupees से वो बहुत सारी चीज़ें नहीं खरीद सकता है. so he has to properly plan that ये 1000 rupees उसको कहाँ स्पेंड करने हैं. Similar, you need to think from the viewpoint of nation. So the first line here once again, a plan specifies how
द रिसोर्स ऑफ द नेशन शुड बी पुट टू यूज़। रिसोर्सेज जो हैं उनका कैसे यूज़ करना है वो प्लान है, प्लान में लिखा हुआ रहता है। एंड व्हाट एल्स इन प्लान? इट शुड हैव जनरल गोल्स एज वेल एज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। कुछ बेसिक गोल्स भी होने चाहिए एंड उन गोल्स को कैसे अचीव करना है वो भी उसमें होना चाहिए। सो प्लान में पहले तो ये होना चाहिए कि नेशन के पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ कैसे करना है, नंबर 1। नंबर 2, प्लान में दो और चीज़ें होनी चाहिए, गोल्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। सिर्फ 5 ईयर प्लान्स हैं, उसमें गोल्स भी रहेंगे एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कौन सा अचीव करना है उस गोल में, दैट ऑल्सो शुड बी वेरी क्लियर। एंड ये भी क्लियर होना चाहिए within what specified time period you have to achieve that. See, if there is no time period, the things won't be working properly. So the things should be finished or over by what time, that also should be very clear. So 2 points you need to remember for plan. 1, how the resource of the nation should be put into use. Number 2, and it also should have general plans and specific objectives. ये clear होना चाहिए क्या goals हैं एंड क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं एंड व्हाट ड्यूरेशन में, कितने टाइम पीरियड में वो अचीव करने हैं, दैट ऑल्सो शुड बी वेरी क्लियर। दैट इज़ प्लान। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक प्लानिंग, सॉरी। समझना इसे, ये बहुत सिंपल है। इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सिस्टम अंडर विच set of target is defined by the central authority of the government. First point, what is economic planning? यहाँ जो टारगेट्स हैं वो कौन डिसाइड करता है? द सेंट्रल अथॉरिटी। सी, बोथ द टर्म्स आर वेरी डिफरेंट। इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब यहाँ द टारगेट्स आर डिसाइडेड एंड द टारगेट्स आर डिसाइडेड बाय whom? द टारगेट्स आर डिसाइडेड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। एंड यहाँ भी एज in the previous point, these target are to be achieved within the specified time period. Yes, see, जो भी टारगेट सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करता है उसे इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं एंड वो टारगेट्स स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अचीव हो जाना चाहिए, बट कीपिंग वन थिंग इन माइंड, दैट इज रिसोर्स ऑफ द कंट्री। टारगेट स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अचीव हो जाना चाहिए, लेकिन क्या ध्यान में रखना है साथ में? The resource of the country should be taken into consideration. Now, once again, economic planning. क्या है economic planning? Economic planning means the set of targets are decided by the central authority. सबसे पहले टारगेट डिसाइड करेंगे सेंट्रल अथॉरिटी, साथ में वो टारगेट जो सेंट्रल अथॉरिटी ने डिसाइड किया है वो कितने टाइम पीरियड में अचीव हो जाना चाहिए। एंड वो टाइम पीरियड जब डिसाइड करते हैं तब साथ में ये भी डिसाइड करना है नेशन के पास कितने रिसोर्स हैं एंड वो कैसे यूज़ होने हैं। दैट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। सी, प्लानिंग कमीशन इंडिया में 1950 में सेटअप हुआ था। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरऑल प्लानिंग वॉज वेस्टेड विथ प्लानिंग कमीशन। जितने भी गोल्स डिसाइड हुए हैं या प्लान डिसाइड हुए हैं ये सब प्लानिंग कमीशन डिसाइड करता है एंड प्लानिंग कमीशन इंडिया में सेटअप हुआ था 1950 में। प्लानिंग इन इंडिया वाज इनिशिएटेड एज द 5 ईयर प्लान। यू नो, एक्चुअली सी द चैप्टर इज़ अबाउट 40 ईयर्स, 1950 to 1990। इन 40 ईयर्स में 7 5 ईयर प्लान के बारे में हमें पढ़ना है। ओके, सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी here. Now, see one point, the 5 year plan are supposed to provide basis for prospective plan. See, these two things are different, 5 year plans and prospective plan. 5 year plans मतलब नाम से ही पता चल जाता है 5 year का प्लान है, चाहे वो ग्रोथ का हो, मॉडर्नाइजेशन का हो, जो भी प्लान हो वो 5 year का प्लान है। लेकिन आर सपोज टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर प्रिस्पेक्टिव प्लान। व्हाट इज प्रिस्पेक्टिव प्लान? प्रिस्पेक्टिव प्लान्स आर लॉन्ग टर्म प्लान्स। 20 ईयर्स का जो प्लान है, 20 to 25, 20 ईयर्स का जो प्लान है, दैट इज़ प्रिस्पेक्टिव प्लान। सो ये जो 5 ईयर प्लान है एंड प्रिस्पेक्टिव प्लान है ये एक दूसरे में कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए। दैट इज़ दिस पॉइंट, द 5 ईयर प्लान आर सपोज टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर प्रिस्पेक्टिव प्लान। तो प्रिस्पेक्टिव प्लान पहले बन गया 20 ईयर्स का एंड अब जो 5 ईयर प्लान बनेगा वो उस प्रिस्पेक्टिव या लॉन्ग टर्म प्लान को ध्यान में रखते हुए बनेगा। दैट इज़ अवर सेकेंड पॉइंट।
नाउ सी गुड पॉइंट टू अंडरस्टैंड, एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे है, थर्ड, it will be unrealistic to expect all the goals of the plan to be given equal importance. See, समझो सेंटेंस को, it is unrealistic, ये रियलिस्टिक नहीं है, पॉसिबल नहीं है, टू एक्सपेक्ट, ये एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि जितने भी गोल्स हम डिसाइड करते हैं उन सब गोल्स को हम इक्वली इम्पोर्टेंस दें. We cannot give equal importance to all the goals. It is not possible. See, let's see with the example. The things will be clear with the example. The goals of introducing modern technology. अब एक ये गोल है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना है, लेकिन जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हैं देन क्या होता है, सी मे बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद द गोल ऑफ इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट. सी मान लो हमने अभी गोल रखा है नई टेक्नोलॉजी लेके आने का, फिर बाद में हम एक और गोल रखते हैं एम्प्लॉयमेंट का, तो ये दोनों जो गोल्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते हैं. बिकॉज अगर नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं होगा, बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है इनिशियली. ओके, सो द प्लानर्स हैव टू बैलेंस द गोल विच वॉज वेरी डिफिकल्ट टास्क. तो ये सब चीज़ों को बैलेंस करना ये इतना ईजी नहीं है. सो द पॉइंट इज इट विल बी अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट ऑल गोल्स ऑफ अ प्लान टू बी गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस. हो सकता है कोई गोल को लेस इंपॉर्टेंस दिया जाए, कोई गोल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए, बिकॉज सब गोल्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना पॉसिबल नहीं है. ये एग्जाम्पल से हमने देखा दैट टेक्नोलॉजी के बारे में सोचने जाते हैं तो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट के बारे में इनिशियली things are not possible. So to balance all the things for the planners sometimes becomes very difficult. Now the fourth point, due to limited resources a choice has to be made. We have seen earlier also resources हमेशा कैसे रहते हैं, limited, and उन limited resources के alternative uses भी हैं. So you need to plan properly ये limited resources का use कहाँ कैसे करना है. That is this point. Due to limited resources, a choice has to be made in each plan about which of the goals is to be given primary importance. तो जैसे हमने एग्जांपल लिया था 1000 रुपीज़ से हम बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं. No, but you need to give priority. As all the things cannot be purchased with 1000 rupees. The needs of the people are unlimited. With 1000 rupees, all that unlimited needs cannot be satisfied. So you need to decide what is the most important right now and what are the things that you can postpone. So why it is happening? Due to limited resources. See, अगर unlimited resources होते हैं ना तो आपके सब needs satisfy हो जाती है, but it is not so. So due to limited resources a choice is to be done here that कौन से गोल को ज़्यादा importance दिया जाए. Now long period objective. See, long period objective मतलब जो भी 5-year प्लान है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव. मतलब ये जो चैप्टर है 40 ईयर्स के बारे में 1950 टू 1990, इन 40 ईयर्स में कौन कौन से गोल्स अचीव होने हैं उनके बारे में है. दीज आर द गोल्स टू बी अचीव्ड इन द 40 ईयर्स. दीज आर द 5 गोल्स. सी, ग्रोथ. ग्रोथ मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द GDP. We are going to discuss in detail about all these 5 topics. Okay, so I'll tell you 1 or 2 sentences about each right now. Growth. Growth में हम GDP के बारे में बात करेंगे. So what is GDP? It is the value of goods and service produced in a country in a specific year. Okay, the value of goods and services. I'm not talking about the number of goods and services. I'm talking about the value of goods and services that are produced in a country in a year, that is GDP. So growth के बारे में हम इसमें बात करेंगे. Modernization, as you know, when we got independence, the situation, modernization या technology के बारे में बात करें on the eve of independence, that was backwardness, stagnancy, all these things were there when we talk about technology. Britishers never done any efforts to modernize the technology. So that is also one of the long period objective that we seek to achieve in this 40 years from 1950 to 1990. Next is self-reliance. Self-reliance matlab we need to stand on our own legs. We need not to be dependent on any nation.
So that is self-reliance. That was also one of the objective. Equity. Now we need to have, equity. Matlab there should be no discrimination. Everyone should be treated as equal and all that things that we'll discuss in that point. Last is the full employment. So there should be employment with each and every person. There should not be any sort of unemployment and all that we are going to discuss here. So these are the long term objective that which the country wants to achieve in these 40 years. We'll discuss in detail about this all long period objectives, and then we'll see what changes happened in the different sectors. Hope you have understood this session. If there is any query regarding any topic that is being discussed here, feel free to contact, because it's not yet decided that when we are going to have the classes. So we have to go through this system only. So you need to understand the things properly by yourself. You need to give your extra efforts during these days. Hope you all will put your best efforts. Once again, if you have doubt in any of the topics, feel free to contact. Thank you and have a nice day.